आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा। Tokyo Olympics 2020। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया रेडियो पे। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने आए हैं टोक्यो ओलंपिक्स की हाइलाइट्स के साथ। इस रेडियो सेशन में मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ स्टूडियो में टोक्यो ओलंपिक्स के आज के दिन के पूरे हाइलाइट्स पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में रविकांत सिंह, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और साथ ही साथ वी कृष्णा स्वामी, वो भी एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की चर्चा के साथ में टोक्यो ओलंपिक्स। यहाँ पर भारत की शुरुआत बेशक अच्छी ना हुई हो, लेकिन आज डे 3 के एक्शन में फेंसिंग में भवानी देवी ने शानदार शुरुआत की, अपना पहला मुकाबला जीता, लेकिन अपने राउंड ऑफ 32 का मुकाबला उन्हें हारना पड़ा। आइए जानते हैं कि भवानी देवी का अपने इस पूरे एक्सपीरियंस को लेकर क्या कहना है। The Olympic was my dream, when I started playing the sport professionally, I wanted to play for India. I feel that Olympics always with me. It's very special moment for me. It's really a dream come true moment for me and for my family and for all the fencing lovers. I think now every kid will dream about Olympics, because when I started fencing, even dream about Olympics is difficult, to even imagine about that situation. But now I'm very sure all the athletes will dream it more confidently and will work very hard to be there. I just want to tell them keep working hard and believe in yourself and you will reach your goal. मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था। शुरुआत बहुत अच्छी की नाडिया बेनजीर के खिलाफ। ओलंपिक खेल में पहली बार भाग ले रही है भवानी देवी, लेकिन दुर्भाग्य उनका कि ड्रॉ उन्हें ले गया फ्रांस की मैनन ब्रुने के खिलाफ। वहां पे जो एक्सपीरियंस था ब्रुने का, कोई चांस था नहीं रियलिस्टिकली। स्वामी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भवानी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि वो उनका बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, ऐतिहासिक चीज है कि फेंसिंग जैसे स्पोर्ट्स में इंडियन विमेन का होना। Niti, it's actually very creditable, for Bhavani to have become the first ever fencer to get to the Olympic stage. टेनिस में आज दिन कुछ खास नहीं रहा। सुमित नागल को भी हार का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं टेनिस पर एक रिपोर्ट आनंद के साथ। India's lone entrant in men's singles tennis, Sumit Nagal, crashed out in the second round when pitted against number 2 seed Daniil Medvedev of ROC. Medvedev won 6-2, 6-1 at the Aryake Center. Nagal looked more than a step behind Medvedev for most of the match. This showed in the number of unforced errors, 31 by Nagal to 12 by Medvedev. In the second set, Nagal stepped up his game as he defended a total of 6 break points, but Medvedev kept up the pressure. Nagal had a lot of problems holding on to his serve, and that proved too costly. Medvedev looked to be firmly in control of the match. The final scores were 6-2 and 6-1, with the match lasting a total of 1 hour and 6 minutes. Earlier this week, Nagal became the third Indian to win a tennis match at the Olympics with his win over Denis Istomin of Uzbekistan. The win for Nagal is the first time in 25 years that an Indian has won a tennis match at the Olympics. The previous 2 times were in 1988 by Zishan Ali and 1996 by Leander Paes. 1996 is also the year when Leander Paes won the memorable bronze medal at the Olympics in Atlanta. रवि, if we talk about archery, men's team की हम बात करते हैं तो आर्चरी में भी आज हार का सामना, वो भी 6-0। I'm not so much bothered about the 6-0 because the set scores were not that different. If you look at the set scores, 54-59 in the first one, 57-59 and then again 54-56. So 2 or 3 points was the difference. But then let's not forget, the Koreans are the best and they went on to win the gold medal. They beat Chinese Taipei for this gold medal match 6-0 and there the differences were much higher. Yes, it was a bad day for India. They'd beaten Kazakhstan easily, but then this is part of the game. So me coming to paddlers, टेबल टेनिस, शरद कमल, उन्होंने बस आज जीत हासिल की, लेकिन कल जो उनका मुकाबला है
वो बहुत बड़ा मुकाबला। You must remember one thing. Sharad Kamal is now 40 years old almost. I think he's 39 or something like that. And he's been around for a very, very long time, for more than 1.5 decades. He's done extremely well at the Asian Games, at the Commonwealth Games itself. But when you get down to the Olympics, I mean, he's, let's say that there was still a long way to go. And now he's going to be up against the reigning champion, Amar Long, who was the winner 5 years ago. And so I think it's going to be extremely difficult. But so far, I would say Kamal's performance was not too bad. As far as Manika Batra is concerned, it was a mixed bag. I mean, she won the first couple of matches, and then I would have expected when you came to this stage to perform above your level. Of course, her opponent Pokolava was much higher ranked than her. रवि मनिका बत्रा का जिक्र किया है, उसके अलावा सुतीर्था मुखर्जी, उन्हें भी आज हार झेलनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि 25 साल की हैं सुतीर्था मुखर्जी, और उनकी अपोनेंट पुर्तगाल की यूफू, उनकी उम्र 42 है। लेकिन फिर भी यूफू ने इस मैच को जीता है स्ट्रेट सेट्स में 11-3, 11-3, 11-5, 11-5। तो ये दिखा रहा है एक्सपीरियंस। और वन ऑफ द रेयर पैडलर्स हु स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स यूजेस द पेन होल्ड ग्रिप, gone out of fashion, started by the Chinese about 30 years or 40 years ago. Very good observation there, Ravi. रवि, एक और चीज है कि मेंस डबल्स बैडमिंटन, वहां पे अभी एक राउंड जीत गए, लेकिन कल फिर से टफ कंपटीशन ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। Let me put it in perspective once again. Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty lost to the world number 1 pair in the Indonesia's Marcus and Kevin. But let's not forget one thing. ये ग्रुप लीग है। इंडियन पेयर ने अपने से बेटर रैंक पेयर को हराया हुआ है, और कल जो ब्रिटिश पेयर से मुकाबला है वो इनसे नीचे है। तो अगर कल का मैच जीतते हैं शेट्टी और रांकिरेड्डी, तो ये क्वालिफाई कर सकते हैं लास्ट 16 यानी नॉकआउट राउंड्स के लिए। तो अभी भी वहां पे उम्मीदें बनी हुई हैं। रवि, कमिंग टू यू फॉर बॉक्सिंग, आशीष कुमार also lost 5-0. Well, that's the third loss in the men's category, leaving only Amit Pangal in the fray. And unfortunately, all the losses have been very, very disappointing. Starting with Vikas Kishan, looked absolutely sluggish. Don't know the reason, but definitely did not look like he belonged there. Same with Manish Kaushik. And today, Ashish was equally dominated by his opponent, didn't have much of a chance at all. So, what boxing was looking up some years ago is not happening any longer. स्वामी शूटर्स एक ऐसा स्पॉट, इंडिया में मार्की स्पॉट हम बोलते हैं कि शूटिंग से हमेशा उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। पहले दिन से खराब शुरुआत, डे 2 में भी सेम परफॉर्मेंस, और स्कीट में थोड़ी सी उम्मीदें बनी थी जब अंगद और उनके अलावा मेराज अहमद ने जो है क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई किया, लेकिन शूटर्स ने अभी तक कुछ भी खास नहीं किया है। देखिए, ऐसा है, मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत सारी शूटिंग बची है, क्योंकि काफ़ी सारी खिलाड़ियों ने अभी तक अपने इवेंट्स में भाग नहीं लिया। मगर शूटिंग ऐसा स्पोर्ट हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ गेम्स में हमने वहाँ पर पदक पाए हैं। 2004 में हमें राठौर से मिला था, उसके बाद अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, काफ़ी सारे पदक मिल चुके हैं। 2016 में जब ब्राजील में रियो में हुआ था, तो बहुत बड़ा धक्का था कि किसी भी शूटर को कोई भी पदक हासिल नहीं हुआ था। तो इस बारी काफी उम्मीद है कि काफी सारे पदक आएंगे, मगर पहले 3 दिन के मुकाबले में सिर्फ जो है सारे हमारे खिलाड़ियों से हार का मुंह देखना पड़ा उनको। तो मैं कहूँगा अभी सबसे ज्यादा दर्द हुई है किसी से, तो वो हुई है शूटर्स से, क्योंकि सौरभ चौधरी के अलावा कोई और फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। मनु भाकर के साथ जो है काफी बदकिस्मती थी कि उनका वेपन मैल फंक्शन कर गया। मगर जब आप इस स्टेज पर आते हैं तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। आई होप मनु भाकर अभी भी बहुत यंग है, सौरभ अभी बहुत यंग है। मिक्स्ड इवेंट में अगर यदि ये 2 जो युवा खिलाड़ी हैं यदि करिश्मा कुछ दिखाते हैं, तो उनकी अपनी नाक और पूरे भारत की नाक और पूरी हमारी जो आशाएं हैं जो है उनको तृप्ति मिल सकती। रवि, शूटिंग, स्विमिंग, उसके अलावा बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स, अब इतना भारी स्पोर्ट हॉकी। देखिए, दूसरी बार है सिर्फ जबकि विमेन्स हॉकी टीम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है। इससे पहले 1980 में भाग लिया था और इस बार क्वालिफाई करके गई हैं। रैंकिंग उनकी नंबर 10 है। तो यहाँ पे अगर आप उनसे उम्मीद करें, थोड़ी ज्यादती हो जाती। Let's face it one thing, Ravi, Nidhi, and I'm sure there are so many listeners out there. Not every athlete who comes to the Olympic Games is going to win a medal and go back. So there will be many people who will gain a lot of experience, positive attitude from there. I think the women, the hockey players have done a pretty good job by getting to a certain, like in the top, to rank among the top 10 teams of the world. Till a few years back, the women were absolutely nowhere. So I think they've done a pretty good job of getting up to here. So
let us hope it is actually going to be, kind of a constant improvement. Maybe, for the World Cup, for the Asian Games. I mean, those are the areas where India could actually find themselves to get a medal, especially at the Asian Games or the Commonwealth Games, where they have been in contention off and on. So I would say this is the experience, but in terms of what the Federation, what the government and what the SAI has done for them in terms of sending them all over the world, I think they've got so many frequent flyer points that I think they probably can actually fly anywhere now. But, when it comes to producing results, we still have some way to go. रवि, इंडिया लॉस्ट टू नेदरलैंड्स 5-1. नाउ जर्मनी के हाथों उन्हें मिली है 2-0 से शिकस्त. Germans play very, very physical. Speed and the stamina of the Germans is way, way ahead. इसके अलावा स्वामी आप पर आएंगे कि कल जो मुकाबले लाइनअप है वहां पर हमने ऑलरेडी जिक्र किया है कि बैडमिंटन में वहां पर मेंस डबल्स कैटेगरी में मैच खेला जाएगा, वो भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ होगा. टेबल टेनिस में अचंता शरद कमल की जो भिड़ंत होगी वो मा लॉन्ग के साथ होगी. मा लॉन्ग के साथ अचंता कमल विल बी अ लॉन्ग शॉट. बहुत ही जो है हमारे को वो जो है बहुत ही बड़ी छलांग होगी यदि वो जीत जाए तो. और जहाँ तक कि हॉकी का सवाल है, जब हम 7-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे तो मेरा ख्याल उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होगा जब गोल एवरेज पर जब पोजीशंस डिसाइड की जाएंगी तो वो भारत के खिलाफ जा सकता है. तो भारत जो है तीसरे या चौथे पायदान के अगर नीचे आ गया, तीसरे या चौथे पे रहा, तो उसको दूसरे ग्रुप के पहली 2 टीमों से मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि काफी जो है मुश्किल काम हो सकता है. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप यदि ग्रुप में से 4 टीमें क्वालिफाई कर रही हैं तो आप 4 में ही आए. आपको कोशिश हमेशा ये करनी है जितना आप ऊपर फिनिश कर सकें उतना बेहतर है, क्योंकि आपको जो है इतना डिफिकल्ट ओपोनेंट नहीं मिलेगा. मगर ऐसा है कि आप ओलंपिक्स में आए हैं, कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो है उम्मीद के बिना नहीं आता. यहाँ पे हर एक आदमी सोचता है, हर एक एथलीट सोचता है मेन और विमेन सेक्शन में कि हम जीत के जाएंगे. तो इसलिए कोई मैच आसान नहीं होता. रवि, आज बॉक्सिंग में आशीष कुमार को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कल बॉक्सिंग में लवलीना जो है नजर आएंगे जर्मनी की नडीन के खिलाफ. तो ये भी बहुत बड़ा मुकाबला होगा. Lavlina Berghain is a pretty gutsy boxer coming from the northeast yet again. So that gives us some hope, but then again she doesn't have too much of big tournament experience. That is where her temperament will come into question. She's got a good guide in MC Maricom, but then it's your performance in the ring on that particular day that counts. स्वामी, हाउ डू यू सी इंडियन सेलिंग राइट नाउ? विष्णु सर्वनन की हम बात करते हैं. अब कल भी उनके 10 सीरीज की रेस है और अभी 5th और 6th के लिए वो फाइट करेंगे. तो किस तरह से ओवरऑल आप देख रहे हैं उनको? If you ask me, among the medal sports, I certainly wouldn't put sailing, because these are areas where India is still gaining experience. If we are looking for medals in these kind of sports, especially like sailing, even fencing and things like that, and disciplines like that, I think more focus should be at the Asian Games level or the Commonwealth Games level, not the Olympics. But sending the athletes here to this kind of a stage takes away the stage fright from them, so that when they go to the Asian Games, उन्हें ऐसा नहीं लगा कि हम Chinese और Koreans के खिलाफ आ गए हैं या जापानीज खिलाड़ियों के सामने आ गए, क्योंकि यहाँ पे खेलेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा. 3 दिन जा चुके हैं ओलंपिक्स के, कल डे 4 का एक्शन है. तो कल क्या उम्मीदें रहेंगी भारत से? और मेडल्स ताली में सिर्फ और सिर्फ एक मेडल, वो भी सिल्वर. I would say that the next hope that we have is that if Manu Bhaker and Saurabh Chaudhary can actually make up for what has happened so far, and I think the coaches and the team management should try and make them forget the failures that took place on the first 2 days and say, okay, what's gone is over. Now focus on this mixed event where they have a very good chance. चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं आज की मेडल्स टैली पर. जापान सबसे टॉप पर बना हुआ है, जहां पर उन्होंने 8 गोल्ड अपने नाम किए हैं और टोटल मेडल्स टैली है उनकी 13 की. जबकि यूएसए दूसरे पोजीशन पर 7 गोल्ड के साथ है और तीसरे पोजीशन पर चाइना है 6 गोल्ड के साथ. भारत अब तक सिर्फ एक मेडल हासिल कर पाया है, वो है सिल्वर मेडल, जो कि महिला 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में है. देखना होगा कि डे 4 के एक्शन में भारत अपनी चुनौती किस तरह से पेश करेगा. हम फिर से वापस आएंगे ऑल इंडिया रेडियो पर इसी शो के साथ. तब तक हमें दीजिए इजाजत और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे साथ स्टूडियो में थे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविकांत सिंह और साथ ही साथ वी कृष्ण स्वामी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Tokyo Olympics 2020. अभी आप टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 में आज के खेलों का लेखा जोखा सुन रहे थे. प्रतिभागी थे वरिष्ठ खेल पत्रकार वी कृष्णस्वामी और रविकांत सिंह. संचालक थी नीति रावत. कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे एसबी वेंकटराम, शिबू जॉर्ज और प्रवीण चंद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.